Hi, good morning everyone. Welcome to our chapter sets, and we will continue from the previous we will discuss about different types of sets. Here we will discuss about universal sets, Venn diagram, and little bit about the power set. So power set I already told you in last lecture that power set, when you make the subset of any set and you write the subset under the set, so that is called it power set. Suppose I have this set A is equal to 1 2, so these are the element under this set. Okay, so first if I want to make the subset of this one, so what will be subset? So there are two elements, so 2 raised to power 2, so will be 4 element. That means when you are going to make the subset of E, so there will be a 4 subsets, so that is 5 1 2 and itself 1 2. So these are the subsets of A. But when I just keep these subsets under this braces, so that becomes the power set. Power set is represented by P, so that is P power set of A. So here power set of A, so there is a same element, elements of the power set is same as how many number of subset you are going to make of the particular set. If you consider phi and A are both elements under the set, so if it is written power of A, so that means phi also will be considered as here and A also will be considered as here. So that means phi, or you can write A set. A set is you have to write the subset of the element of A, and phi is included in that. So phi and A are both elements of power set of A. So if it is written only A is equal to phi, suppose there is only one element A is equal to phi is present, so that means power set of phi is equal to phi, or you can write power set of A is equal to phi. You have to write under the braces, because if you not write under the braces, so that will be considered as your null set. So under the braces, so that will be considered as your element. Suppose if A has only one element A, so in that case your power set of A will be phi. When you are going to write phi should not be written under the braces, because phi is part of set A, but we will not write in the subset form here within this. So this is phi and another will be written as A. So A is the element. So this is the power set of A. This way you have to consider. Suppose I have a question. Prove that for a null set, I have a null set phi. Okay. Number of element of power set of power set of power set of phi. So power set is repeated 3 times. Power set of power set of power set of phi is equal to 4. That you want to prove that. Suppose if there is a null set, so that means power set of phi. Power set of phi will be considered as phi. Okay. Now you have to again find the power set of this, like power set of phi. If you have confusion, you can give this as name A, so that will be easier. Power set of A. Okay, so if there is a one element, if you are going to write this one power set of A, already one phi is present in the curly braces, so when you are going to write, so this will be phi and this will be phi again. Okay, so this is power set of A. Okay, so this is P double P power set of I. You have to give the name, because if I give the name of A, so power set of A will be like that. So now if I have to give the name, so if I have to give the name of this as B, so it will be easier for me. That means now you have to find the power set of B. So under this power set of B means that is power set of A. And power set of E means now you have to write this value under power set of A. Power set of A P
B and 5. Okay, so it will be easier if you mark it. First I just mark a power set of I is A, then power set of A is B, and power set of B. Now you have to find the power set of B. So that means you replace A with power set, replace B with whatever B values power set of A. Now power set of A, here now A replaces with power set of 5. So A replaces with power set of 5, P replaces with P is already there and P is already there. So that is a repetition of the power set. Now you have to make the element. Now here power set of A is this one. This set is there. So when you going to open the number of element under this, so that will be 5. And now these two elements will be separately considered. Like first one is braces of 5. So these are all, this number is already braces, you have to write double braces of this one. Okay, then set itself. Okay, set itself is also the subset of this one. So that whole is, so I write it here, so that is whole it under the braces, because if you have to find the power set, if you have to find the power set of this, okay, so here 5 will be there, okay, and here braces under this, because here when you first write the power set of 5, so 5 is already element because this set is itself is a subset and another element 5 is considered. Okay, now when you go again power set of this one, first you have to try to make the subset of this one. This is an element, first this one braces, and this whole set is considered as your subset. First you have to write the subset and 5 is part of that, so that will be the your power set of B, that means power set of 5. Okay, so how many elements are there? 1 2 3 4, 4 elements. That means if I, because I have to find this power set of B, so either I can write power set of B is equal to 4, or I can replace this with, that is P and 5, so that is equal to 4. This way you have to write, because you have to make the subset, okay, and all the subset when put under the braces, okay, that we call it a power set. If you not put under braces, that we consider nicely as your subsets of the set, not power set. For power set you have to write all subsets of the particular set in the braces form, and 5 will be the part of that one. Okay, because when you are going to write subset of this one, 5 1 2 1 2 of this one. Okay, next is your universal set. Universal set. So what is the universal set? Universal set means when you are going to do some experiment or some observation, okay, you need a sample data. Okay, that sample data we consider as our universal set, and here from that sample data we have to do the experiment, we have to choose the set from that experimental set. So that experimental set where all data is available for our experiment, we call it a universal set. So that is represent as either U or this Greek letter or E. So that is a representation of the universal set. So you can represent universal set by any of these three symbols. Okay, suppose a set of letters of the alphabet. If you are going to experiment on English alphabet, so we can put in the universal all the English alphabets in the set form, so that is a universal set. Okay, so from any word if you want to make, so your basic symbol is A to Z, all your English alphabet, so all your English alphabet is considered as your universal set. Or like in plane geometry, the universal set consists of all the points in the plane. अगर आपके पास एक प्लेन है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, तो ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंडर आते हैं.
नेक्स्ट है, ये तो आपका था यूनिवर्सल सेट। आपने सिर्फ इतना ही माइंड में रखना है कि अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट या कोई मुझे कुछ डिस्कशन करनी है सेट्स को लेके, तो जो मेरा सैम्पल एक एरिया दिया गया होगा, सारा सैम्पल्स दिया होगा, उसको मैं बोलूँगी यूनिवर्सल सेट। अगर मुझे पर्टिकुलर इंटीजर्स नंबर चूज़ करने हैं तो ऑब्वियसली मैं इंटीजर सेट में से ही चूज़ करूँगी। तो उस कंडीशन में जो मेरे ऑल इंटीजर्स नंबर्स आ जाएंगे आपके यूनिवर्सल सेट के अंडर। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ये कि आपके जितने सेट्स हैं उनको ड्रामेटिकली फॉर्म में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके लिए क्लोज्ड फिगर होती है, डिफरेंट टाइप की क्लोज फिगर बेसिकली हम यूज़ करते हैं। एक इस टाइप की भी क्लोज फिगर हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है, रेक्टेंगल शेप की भी होती है, या सर्कल शेप में भी होती है। ओके, ये जो आपके डिफरेंट टाइप्स के क्लोज्ड फिगर्स हैं, ओके, तो ये जो डिफरेंट टाइप की क्लोज फिगर है, इनमें जब अंदर डाटा अवेलेबल होता है, जैसे ए बी सी, किसी भी पॉइंट्स पे आप डाटा प्रेजेंट कर सकते हो, ए बी सी, लाइक ए बी सी। ओके, तो ये जो है आपकी ये जो क्लोज फिगर है, इसको हम वेन डायग्राम के अंडर रखते हैं। ओके, अब इसको एक नाम देते हैं। तो जनरली अगर मेरा यूनिवर्सल सेट है तो मैं किससे नाम दूंगी, यू से। उसको मैं बाहर भी लिख सकती हूँ और अंदर भी लिख सकती हूँ। ओके, तो वो मेरा जनरली हम बाहर इसलिए लिखते हैं कि बाहर से इजीली पता चल जाता है कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, यहाँ सैम्पल स्पेस भी कहते हैं हम उसको। जैसे आपने एक पूरा सेट बनाते हो, सेट कुछ आपने सेट चूज़ किया, तो एक एक्सपेरिमेंटली आपके पास जैसे यूनिवर्सल सेट है, तो उसका पूरा डाटा शो ऑफ करने के लिए आप उसको यू या सैम्पल स्पेस भी आप बोल सकते हो। ओके, अब है ये तो डिफरेंट टाइप्स के हैं, बट बेसिकली हम यूज़ क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल ही मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है एक वेन डायग्राम को शो ऑफ करने के लिए। वैसे तो टाइप बहुत सारी हैं, बट बेसिकली हम ये वाली टाइप्स यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ रेक्टेंगल वाली टाइप यूज़ करते हैं वेन डायग्राम्स के अंदर। ओके, बाय राइटिंग आप जैसे कोई भी लेटर्स है, जनरली एक तरह से भी, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया, उसके सारे एलिमेंट, यू हैव टू प्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स इन दिस यूनिवर्सल सेट। दैट मीन्स दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल एरिया। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है इन्हीं नंबर्स पे करना है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना। सो दैट इज़ अ मेन थिंग ऑफ द यूनिवर्सल सेट। अब उसके अंदर जो आपको सेट प्रेजेंट करना है, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर जो आप सेट प्रेजेंट कर रहे हो। ओके, जैसे मेरा एक यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है। ओके, अगर मुझे सेट बनाना है तो एक ये वाला सेट आ जाएगा, एक ये वाला सेट को अंदर यूनिवर्सल वेन डायग्राम के अंदर, ये वाला तो आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। ओके, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं जो यूनिवर्सल सेट से चूज़ करके बनाई गई हैं, जो कि उसी के सबसेट्स हैं, तो उसको जैसे आपने नाम दे दिया ए और बी। आप अंदर भी लिख सकते हो या कॉर्नर में भी लिख सकते हो ए और बी। तो ये शो ऑफ करता है कि ये यूनिवर्सल सेट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। सपोज मेरे यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो मुझे अगर इसको दो सेट्स में प्रेजेंट करना है, ए सेट में आ गए एलिमेंट 1 2 एंड 3। ओके, और बी सेट में आपके एलिमेंट्स आ गए 4 एंड 5। तो इसको, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बना, एक सर्कल यहाँ पे बना, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे जैसे 1 2 3, 1 2 और 3 ए सेट के अंदर आ गए, बी सेट के अंदर 4 एंड 5। सपोज यहाँ पे 6 और एलिमेंट होता पर ए और बी में नहीं आता, तो 6 हम यहाँ पे ओपनली स्पेस के अंदर मेंशन करते हैं कि यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब अगर ए और बी दोनों सेपरेट हैं, इसको हम बोलते कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये एक तरह से ये प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि जब हम सेट को प्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट में, बेसिकली 3 वे से प्रेजेंट करते हैं। या तो उनमें से कुछ भी कॉमन ना हो, ओके, या उनमें सपोज एक ए सेट इस तरह से आ जाए 1 2 एंड 3, और बी सेट में आ जाए 3 4 एंड 5। तो जब आप एक वेन डायग्राम के थ्रू बनाओ, तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये वाला आपका ए सेट बन गया और ये वाला आपका क्या बन गया, बी सेट। तो जनरली हम एक सर्कल से अगर मैं प्रॉपर वे से शो करूं, तो एक सर्कल इस तरह से आ गया, एक सर्कल इस तरह से ए
बी 1 2 3 कॉमन आ गया, 4 एंड 5। तो ये आता है आपका ये वाला कॉमन एलिमेंट, इसको हम ओवरलैपिंग सेट्स भी बोलते हैं। ओके, अब अगर मान लो कि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं 1 2 3 4 ए सेट में आ जाए और 3 4 बी सेट में आ जाए सपोज, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका सेट, ए सेट तो आप ये वाला बन जाएगा 1 2 3 4 और 3 4 अंदर से बी सेट उसी का सबसेट, कि एक सेट बाहर होगा एक सेट अंदर होगा। तो ये है कि ड्रामेटिक फॉर्म से बेसिकली जो आपने सेट्स किए हैं उनको ड्रामेटिकली फॉर्म से आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ऑफ द सेट्स। उससे पहले ऑपरेशन ऑफ द सेट्स में कि आप कौन कौन सी कैलकुलेशन कर सकते हो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। बेसिकली सेट्स को हम 3 वे से प्रेजेंट करते हैं, या तो वो अलग अलग होंगे नंबर, या उनके बीच में कॉमन होगा, या वो एक दूसरे का सबसेट होगा। ये सेट दूसरे का सबसेट या सेम एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है। अब डिफरेंट जो ऑपरेशंस है सेट में, फर्स्ट जैसे आपका आ गया ए यूनियन बी, जैसे ए यूनियन बी, यू का सिंबल, इसमें क्या होता है कि आपका जैसे ये सेट है, ओके, तो इसमें ए और बी ये दो सेट्स हैं, ओके, इसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट है प्रॉपर, और ये जो सारे एलिमेंट अगर एक पर्टिकुलर सेट में आ जाए ए और बी के, उसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी और ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स का भी मीन है कि उसमें कॉमन भी इंक्लूडेड है। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि अगर आपके पास एक ए सेट है 1 2 और 3 और बी सेट में लिखा हुआ है आपका 3 एंड 4, ओके, तो जब आप ए यूनियन बी लिखोगे 1 2 3 4 कि सारे एलिमेंट ए के, पर बी के एलिमेंट वो एलिमेंट लिखोगे जो ए में नहीं आ रहे, जो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं ए में, वो उसको इग्नोर करके बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आप लिखोगे। या आप ये कह सकते हो कि सारे एलिमेंट लिखने के बाद जो रिपीटेड एलिमेंट है वो आपने 2 बार नहीं लिखने, वो एक ही बार लिखना है। ओके, दैट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक तो ये वाली फॉर्म आ गई कि उसमें कॉमन एलिमेंट आ गया, ओके, एक फॉर्म आ गई कि मुझे ए यूनियन बी लिखना है, ए बाहर है बी अंदर है, ये बी सेट है ये ए सेट है, तो उस कंडीशन पे अगर मुझे ए यूनियन बी ही मेंशन करना है, अगेन ओवरलैपिंग सेट, तो इसमें क्या है बी ए का सबसेट है, बी ए का पार्ट है, तो उस कंडीशन में ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के अंडर आ जाएंगे। तो जैसे ये है मेरे पास, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म थी। सेकेंड फॉर्म, अगर ए सेट में आपको गिवन है 1 2 3 और बी सेट में आपको गिवन है 2 एंड 3, ओके, तो उस कंडीशन में जब आप ए यूनियन बी लिखोगे, तो मैंने बोला था कि सारे एलिमेंट्स लिखने हैं पर रिपीटेड एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना, तो 1 2 3, तो एक तरह से आपका ए सेट ही आ गया, ए यूनियन बी एग्जैक्टली इज इक्वल टू ए सेट अगर बी ए का सबसेट है। ओके, एक थर्ड कंडीशन भी आपकी ए यूनियन बी की, जिस तरह से एक ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, अलग अलग ही है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 है, ओके, तो उस कंडीशन पे आप ए यूनियन बी क्या लिखोगे, सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए बी के ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे कि अगर डिफरेंट हो, सबसेट हो या कॉमन हो, तो उस कंडीशन पे ए यूनियन बी की फॉर्म क्या बनती है। ओके, नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट से पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रही हूँ ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, कि जो इसके कुछ रूल्स होते हैं। मान लो मेरे पास ए बी सी 3 सेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, ओके, तो अगर मुझे कम्यूटेटिव लॉ प्रेजेंट करना है, कम्यूटेटिव लॉ कह रहा है कि अगर मेरे पास 2 सेट को डील करना है, तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखूँ या बी यूनियन ए लिखूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माय आंसर विल बी सेम। तो अगर मेरे पास 3 सेट्स हैं, तो चाहे मैं ए को बाद में ऐड करूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन
बी यूनियन सी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है कि अगर मेरे पास 3 सेट किसी भी ऑर्डर में, अगर मैं उनको यूनियन के अंडर लिखूं या सारे एलिमेंट्स लिखूं, तो वो मेरा आंसर सेम रहता है। ओके, बट इफ ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, अगर A is the subset of A union B and B is the subset of proper set, I told you the proper set also, A union B. तो अगर A is a subset of A union B, B is the proper set of A union B, कि अगर आपके पास A और B इक्वल सेट्स आ जाएं, ओके, एलिमेंट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप कह सकते हो कि ए यूनियन बी के जो आप एलिमेंट लिखोगे वो ए का भी प्रॉपर सेट होगा और बी का भी प्रॉपर सेट होगा, दोनों फॉर्म में जाएगा। ओके, बट अगर आपका आ जाए, ये फर्स्ट था, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड, फोर्थ पॉइंट में ये है कि अगर इफ ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी, क्योंकि ये सिंबल मैंने प्रॉपर सेट का बताया था, अगर A इज़ द इफ़ A इज़ द प्रॉपर सेट ऑफ B, की एलिमेंट्स भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, तो हम A यूनियन B को A भी लिख सकते हैं और B भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। जैसे मैंने पीछे लिखा था अभी, A यूनियन B को A भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि B उसका सबसेट है, बट अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, A B के इक्वल है, तो A यूनियन B को मैं B भी लिख सकती हूँ। बट अगर A यूनियन फाई, अगर मैं ए यूनियन फाई को, फाई मीन्स कोई एलिमेंट, यहाँ पे नल सेट के साथ यूनियन करूँगी तो मेरा वापस ए सेट ही आएगा। तो अल्टीमेटली यूनियन का पर्पस है कि मुझे सारे एलिमेंट्स ही मेंशन करने हैं। उसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मीन्स आपने इसमें कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना है।